بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ریگستانوں اور سیاہ پہاڑوں کے درمیان ایک عظیم سلطنت آباد تھی جسے لوگ سلطنت نوران کہتے تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ اپنی سختی اور طاقت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، مگر اس کے دل کا سب سے قیمتی حصہ اس کا اکلوتا بیٹا شہزادہ سلیم تھا۔ سلیم بہادر تو بہت تھا، مگر اسے شکار کھیلنے کا ایسا جنون تھا جس کی وجہ سے پورا محل پریشان رہتا تھا۔ بادشاہ اکثر غصے سے کہتا، ایک دن یہی ضد تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے گی، مگر شہزادہ ہمیشہ ہنس کر بات ٹال دیتا۔ ایک شام شہزادہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے نکلا، مگر پورا دن گزرنے کے باوجود اسے کوئی شکار نہ ملا۔ سورج غروب ہونے لگا، جنگل پر سرخ اندھیرا چھانے لگا اور شہزادہ غصے اور مایوسی میں واپس جانے ہی والا تھا کہ اچانک ایک عجیب سا ہرن درختوں کے درمیان سے نکلا۔ اس کی آنکھیں نیلی آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ سلیم نے فوری گھوڑا دوڑایا اور ہرن کے پیچھے نکل گیا۔ وہ ہرن کبھی قریب آتا اور کبھی دھند کی طرح غائب ہو جاتا۔ شہزادہ ضد میں اتنا آگے نکل آیا کہ اسے احساس ہی نہ رہا کہ سپاہی بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ آخر وہ ہرن ایک سنسان پہاڑی کے قریب جا کر رک گیا جہاں ایک پراسرار چشمہ بہہ رہا تھا۔ سلیم جیسے ہی قریب پہنچا تو وہ حیرت سے کانپ اٹھا۔ ہرن کا اگلا آدھا جسم انسان جیسا تھا اور باقی جسم ہرن کا۔ شہزادہ ابھی اس عجیب مخلوق کو غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ مخلوق اچانک خوفناک آواز میں ہنسی اور زمین کے اندر موجود ایک تاریک غار میں کود گئی۔ شہزادے کا غرور جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا، آج یہ راز جان کر ہی واپس جاؤں گا۔ وہ تلوار نکال کر غار کے اندر داخل ہو گیا، مگر چند قدم بعد ہی تاریکی میں کسی طاقتور چیز نے اس پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ پوری قوت سے لڑا، مگر دشمن کی طاقت انسانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ چند لمحوں بعد سلیم بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا تھا اور پھر اسے گھسیٹتے ہوئے اندھیرے میں لے جایا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد جب شہزادے کو ہوش آیا تو وہ ایک عظیم محل میں موجود تھا۔ دیواروں پر نیلی آگ جل رہی تھی، عجیب سائے حرکت کر رہے تھے اور اس کے سامنے ایک سیاہ تخت پر وہی پراسرار ہرن بیٹھا تھا، مگر اب وہ مکمل انسان بن گیا تھا۔ اس کے ارد گرد خوفناک جنات کھڑے تھے۔ شہزادے کا دل پہلی بار خوف سے دھڑکنے لگا۔ تب وہ پراسرار بادشاہ مسکرایا اور بولا، آخرکار شکار خود شکاری بن کر ہمارے پاس آ ہی گیا۔ شہزادہ سلیم خاموشی سے اس پراسرار تخت کو دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور ارد گرد کھڑے جنات کی سرخ آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ تخت پر بیٹھا وہ عجیب بادشاہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی مگر خوفناک آواز میں بولا، میں جنات کا بادشاہ زیرام، اور تم انسانوں نے میری دنیا کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ شہزادہ نے ہمت کر کے پوچھا، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ زیرام کی آنکھوں میں اچانک غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ تخت سے اٹھا اور گرج کر بولا، میرے 4 شہزادے کئی سال پہلے غائب ہو گئے تھے۔ آخری بار انہیں انسانوں کے جنگل کے قریب دیکھا گیا تھا۔ تم شکاری ہو، ضرور تم جیسے کسی انسان نے انہیں قید کیا ہوگا۔ یہ سن کر سلیم حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر اس نے غلط جواب دیا تو شاید زندہ واپس نہ جا سکے۔ خوف میں اس کے منہ سے جھوٹ نکل گیا، میں نے کچھ عجیب ہرن پکڑے تھے۔ اتنا سننا تھا کہ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ زیرام کی آنکھوں میں امید چمک اٹھی۔ وہ تیزی سے شہزادے کے قریب آیا اور بولا، وہ کہاں ہے؟ مجھے میرے بچے واپس دلا دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ مگر اب شہزادہ اپنے ہی جھوٹ میں پھنس گیا تھا۔ اس کے دل میں پچھتاوا جاگا۔ چند لمحے بعد اس نے سر نیچے کر کے سچ بول دیا، میں نے جھوٹ کہا تھا، میں نے کبھی کسی ایسے ہرن کا شکار نہیں کیا۔ دربار میں شور ہونے لگا، کئی جنات غصے سے دھاڑنے لگے۔ زیرام نے غصے میں اپنا نیزہ دیوار پر دے مارا جس سے پوری غار لرز اٹھی۔ وہ شہزادے کے بالکل قریب آیا اور بولا، انسان، تم نے ایک باپ کے دل کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ سلیم خوفزدہ ضرور تھا، مگر پہلی بار اس نے سچے دل سے کہا، میں نے جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا، لیکن اب میں واقعی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے شہزادے زندہ ہیں تو میں انہیں ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا۔ زیرام خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر شہزادے کو گھورتا رہا جیسے اس کے دل کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ فوری شہزادے کو زنجیروں سے آزاد کر دیا گیا۔
इसके बाद ज़ेराम ने एक अजीब चमकती हुई अंगूठी शहजादे के हाथ में दी और बोला, ये तिलिस्मी अंगूठी है, इसे पहनकर तुम अपनी शक्ल बदल सकते हो, मगर याद रखना अगर इस ताकत का गलत इस्तेमाल किया तो ये तुम्हारी जान ले लेगी। फिर इसने एक चमकती हुई तलवार शहजादे के हवाले की। तलवार से नीली रोशनी निकल रही थी। ज़ेराम ने धीमी आवाज में कहा, मेरे बच्चों को आखिरी बार काले पहाड़ के इस पार देखा गया था, वहां भूतों की सल्तनत है, जिन्नात का कोई फर्द वहां नहीं जा सकता। अगर हम गए तो सदियों पुरानी जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। ये सुनकर शहजादे के दिल में खौफ दौड़ गया, मगर अब वापस पलटने का रास्ता भी नहीं था। इसी लम्हे गार की दीवारें लरजने लगे। एक जख्मी परी चीखती हुई दरबार में दाखिल हुई और घबरा कर बोली, बादशाह सलामत, काले पहाड़ के इस पार फिर से साए जाग गए हैं, भूतों ने जंगल के दरवाजे खोल दिए हैं। पूरा दरबार खौफ से साकित रह गया और ज़ेराम ने धीरे से शहजादे की तरफ देखा और कहा, शायद बहुत देर हो गई है। गार के अंदर खौफनाक खामोशी छा गई। जख्मी परी कांपती हुई जमीन पर गिरी हुई थी और जिन्नात के सिपाही बेकरारी से एक दूसरे को देख रहे थे। बादशाह ज़ेराम ने फौरी हुक्म दिया, दरवाजे बंद कर दो, कोई भी जिन आज रात गार से बाहर नहीं जाएगा। फिर इसने शहजादा सलीम की तरफ देखा और बोला, अब सिर्फ तुम ही हमारे लिए उम्मीद हो। सलीम के दिल में खौफ तो था, मगर अब उसके अंदर एक अजीब सा जज्बा भी जाग गया था। इसे पहली बार महसूस हुआ कि बहुत सारी जिंदगियां इससे जड़ी हुई हैं। ज़ेराम ने अपने 4 वफादार परी सिपाहियों को शहजादे के साथ भेजने का इरादा किया। इनमें सबसे बहादुर परी ज़ुमरा थी, जिसकी नीली आंखों में अजीब सी चमक थी। वो खामोश खड़ी सलीम को देखती रही, जैसे इसे इंसानों पर भरोसा ना हो। कुछ देर बाद सब लोग काले पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। रात बहुत तारीक थी, आसमान पर बादल गरज रहे थे और जंगल से अजीब सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वो लोग पहाड़ के करीब पहुंचते गए, फिजा ठंडी और खौफनाक होती गई। अचानक जमीन पर पड़े दरख्तों के साए हरकत करने लगे। एक परी घबरा कर बोली, ये आम जंगल नहीं, यहां साए भी जिंदा हैं। शहजादा ने फौरी अंगूठी पहनी और अपनी शक्ल बदलकर एक सिया भेड़िए जैसी बना ली और परियां काले परिंदों की शक्ल में बदल गईं। अब वो खामोशी से भूतों की सरजमीन में दाखिल हो गए थे। वहां हर तरफ जली हुई जमीन, टूटे दरख्त और अजीब चीखों की आवाजें थीं। अचानक एक बहुत बड़ा महल नजर आया, जिसके ऊपर सब्ज आग जल रही थी। महल के इर्द गिर्द सैकड़ों भूत पहरा दे रहे थे। सलीम और उसके साथी एक चट्टान के पीछे हो गए। तभी ज़ुमरा ने धीमी आवाज में कहा, देखो। शहजादे ने गौर से देखा तो महल के सह में 4 नीले हिरन जंजीरों में बंधे हुए थे। उनकी आंखों में खौफ था। सलीम समझ गया कि यही ज़ेराम के गुमशुदा बेटे हैं। वो अभी मंसूबा बना ही रहे थे कि अचानक पीछे से खौफनाक कहकहा सुनाई दिया। सब हैरान होकर पलटे तो उनके सामने लंबा सिया लिबास पहने एक दिव्यकल भूत खड़ा था। इसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो खौफनाक कहकहा लगाकर बोला, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इंसान शहजादे। ये सुनकर सबका रंग उड़ गया। सलीम ने हैरत से अपनी तिलिस्मी अंगूठी की तरफ देखा तो भूत दोबारा हंसा और बोला, तिलिस्मी अंगूठी तुम्हारी शक्ल तो बदल सकती है इंसान, मगर तुम्हारी रूह की खुशबू नहीं छुपा सकती। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकता हूं। फिर इसने हाथ उठाया और अचानक जमीन से निकलने वाली सिया जंजीरों ने सलीम और उसके साथियों को जकड़ लिया। जैसे ही सिया जंजीरें शहजादा सलीम के जिस्म से लिपटी, इसके हाथ में मौजूद तिलिस्मी अंगूठी की नीली रोशनी मद्धम होने लगी। अगले ही लम्हे सिया जंजीरों ने अंगूठी का जादू तोड़ दिया और भेड़िए जैसी शक्ल धीरे धीरे खत्म होने लगी। चंद लम्हों बाद सलीम दोबारा अपनी असल इंसानी सूरत में खड़ा था। इसी के साथ फिजा में गिरती हुई सिया चिड़ियों की शक्लें भी खत्म होने लगे और परियां दोबारा अपनी असल वजूद में आ गईं। चंद लम्हों बाद सलीम और उसके तमाम साथी अपनी हकीकी शक्लों में कैद खड़े थे। दिव्यकल भूत ने कहकहा लगाया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, उन्हें कैद खाने में ले जाओ। चंद लम्हों बाद सलीम और उसके साथियों को एक तारीक जमीन के नीचे वाले कैद खाने में फेंक दिया गया। वहां नमी, अंधेरा और अजीब सरगोशियां थीं। दीवारों से जंजीरों की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बरसों से कैद हो। शहजादा अभी कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक अंधेरे में किसी ने धीमी आवाज में कहा, इंसान।
अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहां से फौरी निकल जाओ। सलीम हैरान होकर आगे बढ़ा तो इसे एक बूढ़ा कैदी नजर आया जिसके हाथ पांव जंजीरों में बंधे थे। इसकी सफेद दाढ़ी जमीन तक पहुंच रही थी। बूढ़ा शख्स कमजोर आवाज में बोला, भूतों का बादशाह सिर्फ तुम्हें मारना नहीं चाहता, वो तुम्हारी दुनिया पर हमला करना चाहता है। ये सुनकर सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े ने बताया कि कई साल पहले जिन्नात और भूतों के दरमियान खौफनाक जंग हुई थी। इस जंग के बाद एक मुआहदा हुआ कि दोनों दुनियाओं के दरमियान दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, मगर अब भूतों का बादशाह इस मुआहदे को तोड़ना चाहता था। इसने ज़ेराम के बेटों को इसीलिए कैद किया कि वो जिन्नात को कमजोर कर सके। फिर बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, और तुम्हें इसलिए जिंदा रखा गया है कि वो तुम्हारे जरिए इंसानी दुनिया का दरवाजा खोलना चाहता है। इतने में अचानक कैद खाने के बाहर जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिलने लगी। परी जुमरा ने सलाखों के दरमियान से बाहर देखा तो पूरे महल में आग भड़क उठी थी। भूतों के सिपाही जोर से भाग रहे थे। इसी लम्हे एक निकाब पोश लड़की तेजी से कैद खाने में दाखिल हुई। इसके हाथ में नीली आग से चमकता खंजर था। इसने बगैर कुछ कहे सलीम की जंजीरें काट दी। सलीम हैरान रह गया। लड़की ने जल्दी से कहा, वक्त बहुत कम है, अगर आज रात तुम यहां से ना निकले तो सुबह तक सब खत्म हो जाएगा। सलीम ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? निकाब पोश लड़की चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने धीरे से अपना निकाब नीचे किया। इसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। परी जुमरा खौफ से पीछे हो गई और सरगोशी की, ये तो भूतों के बादशाह की बेटी है। सलीम हैरत से इसे देखता रह गया, मगर अगले ही लम्हे महल के बाहर से खौफनाक धार सुनाई दी। पूरा कैद खाना लरज उठा। लड़की ने घबरा कर कहा, वो आ गया। और फिर पहली बार शहजादे ने भूतों के असल बादशाह की आवाज सुनी, ऐसी आवाज जो इंसान के दिल से हिम्मत छीन ले। पूरा कैद खाना इस खौफनाक धार से कांप उठा। दीवारों से पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे। निकाब पोश लड़की ने घबरा कर शहजादा सलीम का हाथ पकड़ा और बोली, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। सलीम, जुमरा और बाकी परियां फौरी इसके पीछे भागने लगे। वो लोग लंबी तारीक सुरंगों से गुजरते हुए महल के एक खुफिया हिस्से में पहुंचे जहां अजीब सब्ज रोशनी फैल रही थी। वहां जमीन के दरमियान एक बहुत बड़ा जादुई दरवाजा बना हुआ था जिस पर पुरस्कार निशान चमक रहे थे। सलीम ने हैरत से पूछा, ये क्या है? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, यही वो दरवाजा है जिसके जरिए मेरे बाप इंसानी दुनिया पर हमला करना चाहते हैं। फिर इसने बताया कि इसका नाम लियाना है और वो अपने बाप के जुल्म से नफरत करती है। लियाना ने कहा, अगर ये दरवाजा हिट गया तो भूत इंसानों जिन्नात सबको गुलाम बना लेंगे। सलीम अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक पूरा हाल लरज उठा। सामने अंधेरे में से एक देवहैकल साया नमूदार हुआ। वो भूतों का बादशाह था। इसका जिस्म धुएं की तरह सिया था और आंखें आग की मानिंद जल रही थीं। इसने गुस्से से धाड़ कर कहा, गद्दार लड़की, तुमने इंसानों की मदद करने की हिम्मत कैसे की? लियाना खौफ से कांप गई, मगर सलीम उसके सामने खड़ा हो गया। भूतों के बादशाह ने कहकहा लगाया और हाथ उठाते ही सिया आग की लहरें शहजादे की तरफ बढ़ीं। सलीम ने फौरी नीली तलवार निकाली। जैसे ही दोनों ताकतें आपस में टकराईं, पूरा हाल रोशनी से भर गया। जबरदस्त जंग शुरू हो गई थी। जुमरा और परियां भी भूतों के सिपाहियों से लड़ने लगे। हर तरफ चीखें, आग और जादू की रोशनी छा गई। सलीम बहादुरी से लड़ रहा था, मगर भूतों के बादशाह की ताकत बहुत ज्यादा थी। चंद लम्हों बाद एक जोरदार वार ने शहजादे को दूर दीवार से दे मारा। इसके हाथ से तलवार गिर गई। भूतों का बादशाह धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम इंसान कभी हमारे मुकाबले के काबिल नहीं थे। फिर इसने जादुई दरवाजे की तरफ हाथ उठाया। दरवाजे के अंदर से खौफनाक चीखों की आवाजें आने लगीं। अचानक लियाना दौड़ती हुई आगे आई और उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे के जादू को रोकने की कोशिश की, मगर ऐसा करते ही इसके हाथ जलने लगे। वो दर्द से चीख उठी। सलीम ने यह देखा तो उसके अंदर अचानक गुस्से की आग भड़क उठी। इसे ज़ेराम का दिया हुआ तिलिस्मी शीशा याद आया। इसने फौरी अपनी जेब से वो शीशा निकाला, मगर इसी लम्हे इसे ज़ेराम की बात याद आई।
गलती से भी इसमें अपनी शक्ल मत देख लेना। भूतों का बादशाह तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा था और लियाना की ताकत खत्म होती जा रही थी और जादुई दरवाजा धीरे धीरे मुकम्मल खिलने के करीब था। जादुई दरवाजे से निकलती खौफनाक चीखें पूरे महल को हिला रही थी। लियाना जमीन पर गिरी हुई थी और उसके हाथ जल गए थे। जुमरा और बाकी परियां जख्मी हालत में भूतों के सिपाहियों से लड़ रही थीं। दूसरी तरफ भूतों का बादशाह कहकहे लगा रहा था। इसकी आंखों में फतह की चमक थी। वो गरज कर बोला, आज के बाद तीनों दुनियाओं पर सिर्फ मेरा राज होगा। शहजादा सलीम जख्मी हालत में जमीन से उठा। इसके हाथ में वो तिलिस्मी शीशा था। इसे मालूम था कि एक गलती इसकी जिंदगी खत्म कर सकती है। भूतों का बादशाह तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। इसी लम्हे सलीम ने आंखें बंद की और शीशे को दुश्मन की तरफ कर दिया। अगले ही लम्हे शीशे से नीली रोशनी का जबरदस्त तूफान निकला। पूरा हाल लरज उठा। भूतों का बादशाह चीखा और अपनी आंखें पकड़कर पीछे होने लगा। इसके जिस्म से सिया धुआं निकलने लगा, मगर अचानक शहजादे का तवाजुन बिगड़ा और शीशा उसकी अपनी तरफ मुड़ गया। जैसे ही सलीम की नजर शीशे पर पड़ी, इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। जुमरा घबरा कर उसकी तरफ दौड़ी और भूतों का बादशाह दोबारा हंसने लगा। अब तुम हमेशा के लिए अंधे हो गए हो इंसान, वो धाड़ा। इसी लम्हे लियाना ने आखिरी हिम्मत जमा की। वो दौड़कर जादुई दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और उसने अपने हाथ इस पर रख दिए। नीली रोशनी इसके जिस्म में उतरने लगी। सलीम चीख कर बोला, नहीं लियाना, मगर बहुत देर हो गई थी। लियाना ने आंसुओं के साथ मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी एक दुनिया को बचाने के लिए किसी एक को कुर्बानी देना पड़ती है। अगले ही लम्हे जबरदस्त धमाका हुआ। पूरा जादुई दरवाजा नीली आग में फट गया। खौफनाक चीखें गूंजने लगे। भूतों का बादशाह दर्द से धावता हुआ राख में तब्दील होने लगा। इसके सिपाही भी चीखते हुए धुएं में बदल गए। चंद लम्हों बाद पूरा महल खामोश हो गया था। जंग खत्म हो गई थी, मगर लियाना गायब हो गई थी। सिर्फ इसका चमकता हुआ लाकेट जमीन पर पड़ा था। सलीम अंधी हालत में खामोश बैठा रहा। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद ज़ेराम अपने जिन्नात के साथ वहां पहुंचा। इसने शहजादे को सीने से लगा लिया और तिलिस्मी शीशे पर कुछ पुरअसरार अल्फाज पढ़े। अचानक शीशे से नर्म रोशनी निकली और सलीम की बीनाई वापस आने लगी। जब उसने बीनाई वापस आई तो सबसे पहले इसकी नजर लियाना के खाली लाकेट पर पड़ी। पूरा हाल खामोश था। ज़ेराम ने धीमी आवाज में कहा, तुमने सिर्फ मेरे बेटों को नहीं बचाया, तुमने तीनों दुनियाओं को तबाही से बचाया है। चंद दिन बाद शहजादा सलीम अपने महल वापस पहुंचा। पूरे मुल्क में इसकी वापसी की खुशी मनाई गई, मगर सलीम पहले जैसा गुरूर वाला शिकारी नहीं रहा था। अब उसकी आंखों में संजीदगी और दिल में रहम आ गया था। वो अक्सर रातों को महल की छत पर जाकर आसमान को देखता और लियाना को याद करता। लोग कहते थे कि कभी कभी चांदनी रात में काले पहाड़ के ऊपर नीली रोशनी चमकती दिखाई देती है, जैसे कोई अब भी वहां मौजूद हो। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक था कि बहादुरी सिर्फ तलवार उठाने का नाम नहीं, दूसरों के लिए कुर्बानी देना असल बहादुरी होती है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, मगर सच्चाई, वफादारी और कुर्बानी हमेशा अंधेरों पर जीत जाती है।